الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. تھوڑا آواز بڑھا دیں. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، آج درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں ہم پھر ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی توفیق و عنایت سے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سب کچھ ممکن ہے، اور اللہ کی توفیق کے بنا کائنات میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. ایک حدیث نظر سے گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان امت کے لیے مشعل راہ ہے، دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ مبارک میں ساری امت کی دنیا و آخرت کی کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کر کوئی بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ رکھنا زندگی میں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے. حضرات محترم، رہائش کے اعتبار سے دو طرح کے مقام ہوتے ہیں. ایک اچھی رہائش گاہ ہوتی ہے جہاں انسان کو سکون ملتا ہے. ایک بری رہائش گاہ ہوتی ہے جہاں انسان کی طبیعت میں بے سکونی، تکلیف، پریشانی، گھبراہٹ یہ رہ جاتی ہے، اور وہاں انسان کو سکون نصیب نہیں ہوتا. دنیا کے اعتبار سے یہ سکون بھی عارضی ہیں اور یہ بے سکونیاں بھی عارضی ہیں. دنیا کے اعتبار سے بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گھر بھاری ہے، ہم نے یہ کرائے پہ لے لیا، ہم نے یہ خرید لیا، اس میں ہم منتقل ہوئے، یہاں بیماریاں آ رہی ہیں، یہاں ہمارے کسی بزرگ کی یا کسی اولاد کی موت ہو گئی ہے، لہٰذا یہ گھر بھاری ہے. میرے بھائیوں، گھر بھاری نہیں ہوتے، اعمال کی وجہ سے گھروں میں نحوست آتی ہے. اعمال سے مراد بد اعمالی، اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جھونپڑیوں میں بھی وہ سکون نصیب فرما دیتے ہیں جو اعلی محلات میں سکون نہیں ملتا. ضروری نہیں ہے سکون کی نیند سونے کے لیے نرم گدے اور بستر مہیا ہوں. سکون کی نیند کے لیے رب سے تعلق ہونا ضروری ہے. رب سے حالات ٹھیک ہیں تو سنگریزوں پر بھی نیند آ جائے گی. اگر رب سے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو یاد رکھیے پھر ہر قسم کے سامان مہیا ہونے کے باوجود بھی طبیعت میں سکون پیدا نہیں ہوگا.
सुकून के लिए आमाल सालिहा जरूरी है। अक्सर अहबाब पूछते हैं कि जी हम घर बदल लें क्योंकि यहाँ बीमारियां आ रही हैं, हालात हैं। तो मेरे भाइयों, आमाल बदल लें, घर ना बदल लें। क्या करें जी? आमाल आमाल बदलने से हाल बदलेगा। आमाल बदलने से हाल बदलेगा। हाल बदलने से हाल नहीं बदलेगा। फिर समझिए, हाल क्या है? घर बदलने से दूसरा घर बदल लिया तो इंसान की तबीयत का हाल नहीं बदलेगा। आमाल बदलने से देखिए घर में अल्लाह कितना सुकून नसीब फरमाते हैं। आखिरत के एतबार से सबसे बेहतरीन रिहाइशगाह जन्नत, सबसे बुरा ठिकाना जहन्नम है। अर्ज किया है कि दुनिया के ठिकाने आर्जी हैं, सुकून भी आर्जी हैं, परेशानियां भी आर्जी हैं, और आखिरत के सुकून भी कभी खत्म नहीं होंगे और आखिरत के दुख भी कभी खत्म नहीं होंगे। अल्लाह ताला वहां के दुखों से बचाए रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दिन क़यामत की अल्लाह जल्ल जलालुहु एक ऐसे शख्स को लाएंगे जिसने दुनिया में कभी कोई दुख और आजमाइश नहीं देखा हो। हम जिसे अपनी जुबान में कहते हैं कि सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, राहत की जिंदगी गुजारी और कभी गम और दुख का मुंह न देखा। खुशगवार जिंदगी गुजार के एक शख्स दुनिया से चला गया, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक नहीं बना। दुनिया की तमाम तर सहूलियात उसको मुयस्सर थीं, मुहैया थीं, लेकिन आखिरत के एतबार से तैयारी न कर पाया। 70 साल अगर वो जिंदगी गुजार के गया है और कभी एक बार भी 70 सालों में उसने अपनी तबीयत के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी, कोई बेचैनी नहीं आई तबीयत में, कोई नागवार बात नहीं उसके सामने की गई जो उसकी तबीयत पे नागवार गुजरती। सोना चांदी धन दौलत हर चीज फरावानी थी। अल्लाह जल्ल जलालुहु दिन क़यामत के इसको जहन्नम की आग में एक डुबकी देंगे, एक डुबकी, एक गोता यूं डाल के निकालेंगे और उससे पूछेंगे, बता तूने कभी दुनिया की जिंदगी में सुख देखा है? कहेगा, या अल्लाह मैंने एक सांस के बकदर भी दुनिया में कभी सुख नहीं देखा था। यानी जहन्नम के एक गोते ने दुनिया के 70 साल के सुख भुला देने हैं मेरे भाई। वो इतना अलमनाक मंजर है। जिस दुनिया के सुख के पीछे हम भागते हैं, ये सुख जहन्नम की एक डुबकी ने भुला के रख देने हैं। और फिर दूसरे शख्स को लाया जाएगा जिसने दुनिया में एक लंबी, एक तवील जिंदगी उम्र गुजारी। जिंदगी में आजमाइशें ही आजमाइशें, दुख ही दुख, ठोकरें ही ठोकरें, हर तरफ से हालात का शिकार, लेकिन हालात में घिरकर अपने रब का रास्ता नहीं छोड़ा, अपने रब से मुंह नहीं मोड़ा, अपने रब से हालात कशीदा नहीं किए, अपने रब की क़ज़ा पे रज़ा का इजहार किए रहा। हालात ऐसे रहे कि देखने वाला यह समझे कि जिंदगी में एक सांस भी इसका सुख ही नहीं है। एक बीमारी खत्म नहीं होती, 2 बीमारियां और लाहिक हो जाती हैं, वो नहीं खत्म होती, नई बीमारी पीछा कर लेती है। घर में कभी एक जनाजा उठ रहा है, कभी दूसरा जनाजा उठ रहा है, माली एतबार से इंतहाई तंग दस्ती है, घर बिक गए, औलादों की तरफ से आजमाइशें, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, अलम ही अलम, परेशानियां ही परेशानियां। लेकिन याद रखिए, इसने अपने रब से ताल्लुक नहीं तोड़ा। अल्लाह जल्ल जलालुहु इसको जन्नत के दरवाजे पे लाएंगे और जन्नत के दरवाजे पर लाकर सिर्फ जन्नत का यूं एक कवाड़ खुलेगा और जन्नत का नजारा करा के दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, बता मेरे बंदे, तूने कभी दुनिया में दुख देखा है? कहेगा, या अल्लाह मैंने एक सांस के बकदर भी दुनिया में कोई तकलीफ नहीं देखी। यानी जन्नत के एक नजारे ने दुनिया के 70 साल के दुख भुला देने हैं, जहन्नम की एक डुबकी ने दुनिया के 70 साल के सुख भुला देने। इसलिए मेरे भाइयों, खुश नसीब है वो बंदा
जो अपनी इस दुनिया को आखिरत का सरमाया बना ले, दुनिया को दुनिया का सरमाया ना बनाने में लगा रहे। दुनिया तो गुजर ही जाएगी और जो रब ने मुकद्दर का लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। ये समंदर की तहों में चला जाए, ये पहाड़ों की चोटियों में चला जाए, ये आसमान की बुलंदियों में चला जाए, जो अल्लाह ने दुनिया में मुकद्दर में सुख लिखा है वो मिलकर रहेगा, जो दुख लिखा है वो मिलकर रहेगा, जो निवाला लिखा है वो भी मिलकर रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला आखिरत की नाकामियों से बचा ले। दुनिया मांगना ऐब नहीं है जी, अल्लाह ताला से दुनिया मांगना ऐब नहीं है, लेकिन आखिरत भुलाना ऐब है। कुरान मजीद में जो दुआ सिखाई गई है उस दुआ के दो पहलू हैं। एक दुनिया का पहलू है और एक आखिरत का पहलू है। दोनों के मांगने की इजाजत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, वफिल आखिरती हसना, हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा। और आखिरत की भलाई क्या है? वकीना अज़ाबन नार, हमें जहन्नम की आग से बचा लें। दुनिया मांगे, दुनिया बरतने की चीज है, दुनिया कमाएं, अल्लाह का इनाम और फजल है, अल्लाह ताला आसान रोजी अता फरमा दें। दुनिया जरूरत की हद तक रखी जाए, दुनिया को दिल में ना बसाया जाए। जब हम दुनिया को दिल में बसाना शुरू हो जाते हैं वहां से माहौल खराब होता है। आखिरत का माहौल यहां से खराब होता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए किश्ती को पानी की जरूरत है कि नहीं है? पानी नहीं होगा तो किश्ती मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी के अंदर यह मिसाल बयान करके समझाई है बात। फरमाया कि कश्ती को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए पानी की अशद जरूरत है, लेकिन कब? जब तक ये पानी किश्ती से बाहर रहे तो मंजिल मिलती है। और जो पानी उसकी मंजिल का सबसे बड़ा सबब था, अगर यही पानी उसके अंदर दाखिल हो जाए तो हलाके कश्तीयस्त, फिर यही इस किश्ती की हलाकत का सबब बन जाता है। ऐसे ही दुनिया के मालो दौलत, दुनिया के असबाब, जराए, ये इंसानी जिंदगी की कामयाबी के लिए एक बड़े सबब का मकाम रखते हैं, बहुत बड़ा सबब है। इसके बगैर दुनिया की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। लेकिन कब तक? जब तक ये दिल की किश्ती से बाहर रहे। अगर ये दुनिया का पानी दिल की किश्ती में छेद करके दाखिल हो गया, हालांकि किश्ती, फिर जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर ये किश्ती तबाह बर्बाद हो गई। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अर्ज ये कर रहा था कि आखिरत के अजाब भी हमेशा हमेशा की और आखिरत की खुशियां भी हमेशा हमेशा की। जहन्नम इंतहाई खतरनाक रिहायशगाह है। मैंने जो आयत करीमा आप दोस्तों की खिदमत में पढ़ी है, ये 27वें पारा में सूरतुल वाक़िया है और इसकी ये आयत नंबर 56 है। फरमाया हादा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, पीछे तज़किरा चल रहा है। व अस्हाबु शिमाली मा अस्हाबु शिमाल, वो बदनसीब तबका जिनके नाम आमाल उल्टे हाथ में मिलेंगे। फी समूम व हमीम, फरमाया वो गर्म तरीन लू में होंगे और खौलते हुए पानी में गोते खा रहे होंगे। व ज़िल्लिम मिन यहमूम, और जला डालने वाले धुएं के साए में होंगे। जला डालने वाला धुआं, जहन्नम का धुआं दुनिया की आग से गर्म है। ला बारिदिन, ना उसमें ठंडक है, वला करीम, ना इज्जत की छांव होगी। वो छांव होगी मगर इज्जत की राहत की छांव नहीं होगी।
وجہ کیا ہے جی؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، دنیا میں اکڑ دکھایا کرتے تھے۔ فرد جرم کیا ہے دنیا میں؟ مترفین، اکڑ دکھایا کرتے تھے، دنیا کے معاملہ میں بھی دین کے معاملہ میں بھی، سینہ زوری، تکبر میں۔ کس طرح جی؟ فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بہت بڑے گناہ پر ڈٹ جایا کرتے، یسرون، مصر تھے، اصرار کرتے تھے، علی الحنث العظیم، بہت بڑے گناہ پر۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے بھائی؟ ہاں، ان الشرک لظلم۔ اگر بتایا جاتا تھا کہ بھائی شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بچو، کہتے تھے جی ہم تو عشق کرتے ہیں، ہم شرک کہاں کرتے ہیں، ہم تو عشق کرتے ہیں، یہ شرک تھوڑی ہے۔ تو میرے بھائیو، شرک ہمیشہ عشق کے رنگ میں آتا ہے، جب محبت حد سے تجاوز کرتی ہے پھر شرک شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ھذا نزلهم یوم الدین، آگے سارے عذابوں کا تذکرہ چلتے چلتے فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور یہ پیاسے ہوں گے اور اس کو پیئیں گے۔ کیسے پیئیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ بڑے بڑے گھونٹ پانی پیتا ہے، ایسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی بڑے بڑے گھونٹ پیئیں گے، اور ایک گھونٹ جب حلق سے اترے گا اندر سب کچھ کاٹتا ہوا انتڑیوں کو پاخانے کے راستے نکال دے گا، لیکن پھر بھی پیئیں گے۔ کیا کریں؟ مرتے کیا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ منظر دیکھنا بھی نصیب نہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ سزائیں ہیں، لیکن میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو اکثر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے، اور ہلا ڈالنے والی روایت، ہلا دینے والی ہے خدا کی قسم۔ اگر اس میں ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم جہنمیوں کے لیے انتہائی ایذا کا سبب ہے، خطرناک قید خانہ ہے۔ وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، ایک ایک بچھو خچر خچر کے برابر، اور ایک ایک سانپ جس کا ڈنگ 70 گز لمبا، جس کا ڈنگ 70 گز لمبا، اور اگر وہ پھونکارے دنیا میں، ایک بار وہ پھونکار مار دے دنیا میں ساری زندگیاں گل ہو جائیں، اتنا خطرناک، اتنا خطرناک۔ اور وہاں کی خوراک زقوم کا درخت جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے، اور اس کو پانی سے نہیں سینچا جاتا، اس کی خوراک جہنم کی آگ ہے، اور وہ اتنا زہریلا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس کے رس کا دنیا میں ڈال دیا جائے، ایک قطرہ رس، تو دنیا میں ہر چیز زہر سے بھی زیادہ کڑوی ہو جائے۔ اور وہاں گناہگار کھا رہے ہوں گے اس کو، لوہے کے کانٹے ہوں گے جو حلق میں اٹک جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ تکلیف دہ منظر تو ہے، لیکن حدیث بڑی عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر لوگوں کی ایذا کے لیے جہنم کافی ہوگی، لیکن ایک عجب منظر اور ہوگا۔ اربعۃ یؤذون اہل النار علی ما بہم العذاب، 4 ایسے بدنصیب جہنمی ہوں گے کہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو کم تکلیف ہوگی اور ان کے عذاب دیکھ کر ان کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ سمجھیے، جہنم کی آگ کا عذاب الگ، لیکن اس عذاب سے بھی بڑھ کر جہنمی جس چیز کی تکلیف میں ہوں گے اور جس چیز کی وجہ سے ایذا میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، وہ ان 4 گناہگاروں کا عذاب ہوگا، ان کی چیخ و پکار ہوگی، ان کا واویلا ہوگا جو ان کو چین نہیں لینے دے گا۔ ادھر آگ میں جل رہے ہیں، ادھر ان کا واویلا، ان کی تڑپ دے کر، ان کے عذاب دے کر جہنمی بھی تکلیف میں آ جائیں گے۔ وہ کون سے گناہگار ہیں؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دن قیامت کے دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب، کمزور ترین، یعنی یوں سمجھے جس کے ساتھ کوئی بہت ہی مہربانی کر دی گئی جہنم میں، اس کو انگاروں کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ یغلی منہ دماغہ، پھر ان انگاروں کی حدت کی وجہ سے جو پاؤں تلے انگاروں کی جوتیاں ہوں گی، اس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں سالن کھولتا ہے، ایسے
ये सबसे हल्का अजाब होगा, बाकी सब अजाब इससे ऊपर के होंगे। तो फरमाए एक ऐसा शख्स होगा जिसके अजाब को देखकर जहन्नमी अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, पनाह मांगेंगे, या अल्लाह जहन्नम का अजाब तो सख्त है, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ हमें रूहानी तौर पर इसकी चीखों पुकार से है, इससे हमें कहीं दूर जाके जहन्नम में डालें, या अल्लाह इससे हमें दूर कर दें या इसको हमसे दूर कर दें। पहला शख्स कौन सा होगा? रजुलन मुगलकुन अलैहि ताबूतुम मिन जुमरन, रजुलन मुगलकुन अलैहि ताबूतुन मिन जुमरन। फरमाया आग के अंगारों का एक संदूक बनाया जाएगा, आग के अंगारों की एक पेटी होगी, यानी उसकी दीवारें आग की होंगी, और इस शख्स को जंजीरों में जकड़ा जाएगा, जंजीरों में जकड़कर उस आग की पेटी में रखकर ऊपर से उसका ढक्कन बंद करके ताला डाल दिया जाएगा और उस पेटी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लाजिम बात है, इंसान को तकलीफ होती है, कुछ तड़प लेता है तो कदरे राहत मिलती है, तड़प लेता है तो कदरे राहत मिलती है, कुछ करवट बदल लेता है, कुछ एक साइड को सुकून मिल जाता है, फिर कदरे हो जाता। लेकिन यहां क्या मंजर है? आग के अंगारों की पेटी है, यानी नीचे भी आग, ऊपर भी आग, साइडों में भी आग, और जंजीर भी आग के जिनसे जकड़न है, और फिर उस आग की पेटी के अंदर ये बंद है, ऊपर से ढक्कन बंद है, और फिर इसको आग के अंदर डाल दिया गया है। इसकी जो चीखो पुकार होगी उससे जहन्नमी तंग आ जाएंगे, या अल्लाह हमें इससे दूर कर ले, हमें इससे दूर कर ले। मेरे भाई जाग रहे हैं? तवज्जो है? अल्लाह हमें इस अजाब से बचा लें। अरे जरा पूछे तो सही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो फरमाइए इस बंदे से जुर्म क्या हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोगों का नाहक माल खाने वाला शख्स है। कौन है भाई? लोगों का नाहक माल खाने वाला, कारोबार में डंडी मारकर, नाप तोल में कमी करके, सूद के जरिए, रिश्वत के जरिए, डाका और चोरी के जरिए, झूठ के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए, किसी भी जरिए से लोगों का नाहक माल खाने वाला, फरमाया दिन क़यामत के इसको जहन्नम के अंगारों की पेटी में बंद करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा, और दीगर जहन्नमी इसकी चीखों पुकार से तंग आकर अल्लाह से पनाह मांगेंगे। अरबातुन युज़ूना अहलन नार अला मा बिहिमुल अज़ाब, फरमाया ये चार बदनसीब हैं जिनके अजाब की वजह से जहन्नमी अल्लाह से पनाह मांगेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो एक सफर में थे, तो पहाड़ों के दामन में एक चरवाहे से मुलाकात हो गई। चरवाहे से कहते हैं कि भाई हम मुसाफिर हैं, हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया, उसका इम्तिहान ले रहे थे, खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, तो आप ऐसा करें एक बकरी हम पर बेच दें, हम उसका जब तक चाहेंगे दूध पिएंगे और जब चाहेंगे ज़िबा करके खा जाएंगे, तो आप पर हम पर आप बेच दें, हम आपको पैसे दे देंगे। तो उसने कहा ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं चरवाहा हूं, इसका मालिक कोई और है, मुझे इख्तियार नहीं है जनाब इनके बेचने का। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तू हम पर बेच दे, हमारा भी काम हो जाएगा, तू पैसे ले लेगा, तेरा भी काम हो जाएगा, तेरा मालिक तुझे थोड़ी देख रहा है, या इतना बड़ा रेवड़ है, इसमें अगर एक बकरी गुम भी हो गई तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसे पता चल भी गया कि एक बकरी कम है तो तुम झूठ बोल देना। ये इम्तिहान हो रहा है, ख्याल करना, ये इम्तिहान लिया जा रहा है कि चरवाहे का ईमान कैसा है। तुम झूठ बोल देना और उसे कह देना कि बकरी को भेड़िया उठा करके ले गया है। चरवाहे ने बात सुनी, थोड़ी देर तवक्कुफ किया, सोच कर कहने लगा, ए मुसाफिर, मैंने तेरे पे बकरी बेच दी, तूने बकरी का दूध इस्तेमाल कर लिया, गोश्त खा लिया, तेरा भी काम बन गया, मैंने पैसे ले लिए, मेरा भी काम बन गया, मालिक के सामने मैंने झूठ बोलकर उसको भी मुतमईन कर दिया कि भेड़िया उठा करके ले गया है। या फ़अइन अल्लाह, ये तो बता अल्लाह कहां जाएगा, ये तो बता अल्लाह कहां, अल्लाह को क्या जवाब, अल्लाह को कैसे मुतमईन करूंगा। या अल्लाह, ये उस जमाने के चरवाहों का ईमान था।
उस जमाने के गडरिये का ये ईमान था, ये तकवा था, ये लिल्लाहियत खशियत इलाही कि मैं किसी का नाजायज माल न खाऊं, नाहक में किसी का माल न खाऊं। या हाफाइन अल्लाह, क्यों? अल्लाह देख रहा है। क्या है भाई? अल्लाह देख रहा है। कांटे में हम कहीं भी खराबी कर लेते हैं, कस्टमर नहीं देख पाता, लेकिन अल्लाह देख रहा। अल्लाह से नहीं छुपा सकते। जितना हाथ की सफाई दिखा लें, सारी कायनात अल्लाह के हुजूर ऐसी है जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना पड़ा हो। ऐसे बंदा देख रहा है, उसको उलट पलट के देख सकता है। अल्लाह के सामने सारी कायनात इससे भी ज्यादा रोशन है, इससे भी ज्यादा करीब। अल्लाहु अकबर। इंसान अगर दुनिया है, जरूरियात होती हैं, मकरूज हो गया है, हालात आ गए हैं, किसी का देना है, नीयत अपनी साफ रखे। हाँ, नीयत में फतूर ना है, नीयत साफ रखे। इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में जब तौफीक मिली, माल आया मैं लौटाऊंगा, कर्ज लौटाऊंगा, फलां का माल मेरे जिम्मा है, गलती हो गई मैं लौटाऊंगा। और जब अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दें तो अदायगी में ताखीर न करे। ये नीयत दुरुस्त हो। हदीस शरीफ में आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कर्ज की अदायगी की नीयत कर लेता है, अल्लाह उसके लिए अदायगी आसान कर देते। हाँ, अल्लाह उसके लिए अदायगी आसान। देखिए मेरे भाइयों, हमने रोजे रखे, हमने तरावी पढ़ी, हमने नमाजें पढ़ी, हमने जिक्र किए, माशाअल्लाह रहमतों का, बख्शिश का महीना था, बड़ी मेहनत की है आप सबने, सारे मुआशरे में मुसलमानों, मर्दों, औरतों ने मेहनत की है। लेकिन देखें, जब तक हमारे मामलात दुरुस्त नहीं होंगे मेरे भाई, आमाल से काम नहीं बनने वाला। मामलात पहले हैं। क्यों? आमाल का ताल्लुक अल्लाह से। अल्लाह चाहेंगे कमी कोताही माफ कर देंगे, लेकिन अगर किसी के मामलात हमारे जिम्मा है, जब तक हम मामलात से क्लियर होके निकलेंगे नहीं, तब तक बख्शिश नहीं तो दूसरा हल क्या होगा? जो आमाल हैं वो देना पड़ेंगे। आमाल दे के फिर इन मामलात से निकलना है। तो आमाल से जरूरी मामलात हैं। बोलो क्या है? आमाल से ज्यादा जरूरी मामलात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था, वो दरिया के पार एक बस्ती में गया और वहां किसी भी जानने वाले के पास जाकर कहा कि मुझे 1000 अशरफियों की जरूरत है, बतौर कर्ज मुझे दे दें, मैं फलां तारीख को ये आपको लौटा दूंगा। उसने कहा मैं दे तो दूं आपको, लेकिन ये हमारे लेन देन के मामले में जामिन कौन है? जामिन लाओ, कोई जामिन भी हो ना। उसने कहा मेरी जानिब से जामिन अल्लाह है। कौन है? अगर कोई समझे तो बड़ी बात है और न समझे तो कोई बात नहीं। हमारे यहां तो इस बात की वैल्यू, कोई अगर आपकी दुकान पे आता है, भाई मुझे आप उधार दे दें, आप कहते हैं जी कोई आप जामिन लेके, आप कहें जी अल्लाह कहते हैं जा जा काम कर अपना, अल्लाह जामिन। ये हमारा ईमान है कि नहीं है भाई? अल्लाह, ये हमारा यकीन है। और कोई आम सा बंदा भी मार्केट से पकड़ के ले आया तो हाँ ठीक है जी ले जाएं, अब यकीन है हमें, इसलिए कि हमारे दिलों में अल्लाह की अजमत नहीं आई अभी तक। अल्लाह की अजमत क्या है? और दिन क़यामत के जो फर्द जुर्म लगने वाला है, 29वां पारा पढ़ कर देखें। मेरे रब ने फरमाया दिन क़यामत के लोग आएंगे, नमाजी भी होंगे, कलमा भी पढ़ते होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी गिरफ्त हो रही होगी। जुर्म क्या है? इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इसलिए कि इनके दिलों में अल्लाह की अजमत मौजूद नहीं थी। अल्लाह की अजमत मौजूद नहीं। अल्लाह की अजमत एक अलग, ये एक ईमान का अलग रुख है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी अजमत पैदा फरमा दे। शख्स ने कहा मेरा अल्लाह जामिन। उसने कहा जब अल्लाह जामिन है जा ले जा, फिर मुझे कोई परवाह नहीं। 1000 अशरफियां उसने दे दी, तारीख मुतय्यन हो गई वापसी की, लेके चला गया, वो तारीख आ गई। इधर से जो कर्ज अदा करने वाला शख्स था, उसने 1000 अशरफियां ली और दरिया के किनारे आ गया। अभी किश्ती आती है, सवार होके जाऊंगा और उस किनारे उतर के अपना कर्ज अदा कर दूंगा। ये बैठा 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 बैठा, असर का वक्त हो गया, किश्ती नहीं आई, बहुत परेशान। मैंने अल्लाह को जामिन बनाया था, अरे उसके दिल में क्या आएगी? अल्लाह को जामिन, रो रहा है, परेशान हाल है। अचानक दिल में ख्याल आया कि मैं जब अल्लाह को जामिन बना चुका हूं तो कर्ज में अल्लाह को तो लौटा दूं, आगे अल्लाह पहुंचा देंगे।
एक दरख्त का तना उसने देखा, वो उठाया, उसको अंदर से खोखला किया, वो अशरफियां उसमें भरी, उसको अच्छे से बंद कर दिया और अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसने दरिया में डाल दी। मेरे अल्लाह, आपको मैंने जामिन बनाया था, ये अमानत आपके सुपुर्द है, मेरे बस में जितना था मैंने उतना किया है। उधर से वो शख्स दरिया के उस पार उस किनारे आया बैठा है इंतजार में। आज तारीख मुतय्यन थी, आज का वादा था, वो शख्स जरूर आएगा, अल्लाह को जामिन बना करके गया था, तो मैं अपना कर्ज वसूल कर लूंगा। वो वहां इंतजार में है कर्ज की, ये यहां इंतजार में है किश्ती की। किश्ती ना मिली तो यूं इसने एक लकड़ी में बंद किया और पानी में बहा दिया। अब वो शख्स बैठा 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 बैठा, शाम मगरिब का अंधेरा छाने लगा, मायूस होकर जो वापस मुड़ने लगा, एक लकड़ी देखी तैरती आ रही। उसने कहा भाई बंदा तो आया नहीं, चले ये लकड़ी पकड़ लेता हूं, घर जाके सुखा के ईंधन ही बना के जला लेंगे, इसको तो ले जाऊं। आया नहीं, लकड़ी उठाई, कंधे पे रखी, घर चला गया। जाकर के उसने रख दी। अच्छा जी, ये बंदा वापस आ गया जो कर्ज देने वाला था। कुछ दिनों के बाद इसके दिल में ख्याल आया, पता नहीं अल्लाह बेनियाज ज़ात हैं, वो अमानत पहुंची हो ना पहुंची हो, मैं ऐसा करता हूं और इंतजाम कर लेता हूं और मैं जाता हूं उसके पास, फिर जाकर माफी तलाफी भी हो जाएगी और अदायगी भी कराऊंगा। ये लेके चला। उधर क्या हुआ, लकड़ी खुश्क हो गई। एहलिया ने कहा भाई वो लकड़ी है, जरा ये काट कूट दें ताकि हम इसको जलाएं। तो उसने जो लकड़ी काटना शुरू की, एक ही जरब से पता चला कि अंदर तो छन छनाती अशरफियां निकल आई बात। और साथ ही उसके यहां एक खत भी रखा हुआ था कि किश्ती न मिली, मैंने ये अमानत अल्लाह के सुपुर्द की है, मैंने जिसको जामिन बनाया था, अगर पहुंच जाए तो फबेहा, नहीं तो इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। देखा, इधर से ये बंदा कुछ दिनों बाद पहुंच गया। उसने कहा भाई मैं आपका कर्ज अदा करने आया हूं। वो तज़किरा नहीं किया पहले उसका जो मैंने भेजा, तज़किरा नहीं किया, मैं वो कर्जा अदा करने आया हूं। कहता भाई आपका कर्ज तो मुझे मिल चुका है। कैसे मिल चुका? कि आपने जिस अल्लाह को जामिन बनाया था, उस अल्लाह ताला के भरोसे पर आपने वो समंदर में डाला था, दरिया में डाला, अल्लाह ने वो अमानत मुझ तक पहुंचा दी है, मुझे मिल चुकी है, ये देखो ये आपका माल है, रखा हुआ है हमारे पास, मिल चुका है। इशारा क्या मिला? नीयत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। क्या हो भाई, अदायगी की नीयत कर लें, अल्लाह ताला असवाब मुहैया फरमा देंगे इंशाअल्लाह। समझ आ गई है? आज क्या होता है, आज सबसे बड़ा जो परेशान कुन मामला है वो लेन देन के मामले में। लेन देन किया, अच्छे खासे दोस्त थे, ताल्लुक था, माल भी गया, ताल्लुक भी गया। हाँ भाई, चल रहा है नहीं चल रहा? जी चल रहा है ना। आजकल तो बल्कि अक्लमंद तो यूं कहते हैं कि अगर किसी से लेन देन करें तो उसको माल भी दे दें, साथ उसके एक डंडा भी दे दें, भाई जब मांगने हो तो मेरे सर में मारना। हाँ, सही है ना भाई? आजकल तो ये हालात हो गए हैं हमारे। मेरे भाइयों, इस्लाम जो है ना मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज रोजा का नाम इस्लाम है। इस्लाम मुआमलात सिखाता है, मुआशरत सिखाता है, मुआशरे में तुमने कैसे जीना है, मुआशरे में तुमने लेन देन कैसे रखना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ खैबर के किले का मुहासरा कर लिया। यहूदियों का किला खैबर मुहासरा कर लिया। तकरीबन 27 दिन तक मुहासरा रहा और इस मुहासरे में फतह नहीं हो रही, क्योंकि यहूदी किला बंद थे, अंदर से वो भी तीर बरसा देते, बाहर से मुसलमान भी दिफाई पोजीशन में लड़ रहे थे, वो दरवाजे नहीं खोल रहे। तो ये मुहासरा तूल पकड़ गया, तकरीबन 27 दिन या 1 महीने के करीब लग गया। जो ही मुहासरा हुआ तो आपस में झड़पें चलती रहीं। एक यहूदी सरदार का एक गुलाम था, अस्वद राई, राई कहते हैं चरवाहे को, नाम उसका अस्वद। अस्वद इसलिए कहते थे कि बहुत ज्यादा काला था, अस्वद काले रंग वाला, बल्कि ज्यादा काले रंग वाला। हबशी गुलाम था, बकरियां चराता था। एक दिन उसने कहा कि मालिक, बहुत दिन हो गए मुसलमानों ने मुहासरा कर रखा है, दरवाजे नहीं खुले किले के, अब तो जानवर भी भूखों मरते हैं, मैं तो एक आम सा गुलाम हूं, मुझे तो इजाजत दें, मैं बकरियां चराने तो निकल जाऊं बाहर।
ये बेचारे जानवर हैं, ये तो भूख प्यास से मर रहे हैं, इनको तो मैं ले जाऊं घुमा फिरा कर। उन्होंने कहा भाई बाहर मुसलमानों का मुहासरा है, पकड़े जाओगे। उन्होंने कहा हम गरीब गुलाम हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हमें इजाजत दीजिए। बहाना था असल में वहां से निकलने का। कहते हैं कि मैं वहां से निकला, चलते चलते सीधा रुख कर लिया मुसलमानों के लश्कर का। और जब साहबे किराम के पास पहुंचे, रेवड़ भी साथ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछा साहबे किराम से, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। साहबे किराम ने पहले तो पकड़ के तफ्तीश की, कोई दुश्मन का जासूस ना हो। फिर देखा ये गरीब सा एक चरवाहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में दाखिल हुआ तो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, बकरियां चराना तो एक बहाना था, असल तो आपका दीदार करने की गरज से आया हूं। इसलिए कि हमने अपने मालिकों से तौरात में आपके औसाफ सुन रखे हैं, क्योंकि यहूदी पढ़े लिखे लोग थे। मैंने अपने मालिक से, यहूदी आलिम से आपके औसाफ सुन रखे हैं, तो मैं आपका दीदार करने आया हूं। बकरियां चराना तो एक बहाना था। या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाना चाहता हूं, लेकिन मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसा ना हो कि ईमान भी ले आऊं और वैसा का वैसा रह जाऊं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी? पहला तहफ़्फ़ुज़ तो यह है कि हम यहूदियों के गुलाम हैं और हम गुलाम ही हैं। हमारा मकाम अपने मालिकों के बराबर में नहीं है। हम उनके बराबर में बैठ नहीं सकते, हम उनके साथ दस्तरखान पे खा पी नहीं सकते। हमारे बर्तन अलग हैं, उनके बर्तन अलग हैं। हमारा बैठने का मकाम उनकी जूतियों की जगह है, हम वहां बैठ। ये बताइए, जब मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो क्या यहां मुसलमानों में भी हमें जूतियों में बैठना पड़ेगा? या रसूलल्लाह, क्या यहां भी हमारी वही कैफियत रहेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सीने लगा लिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इस्लाम ले आओ, मैं अल्लाह का नबी तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगा। अल्लाह अल्लाह। हमारे यहां कोई काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि, जितना दिल में तकवा ज्यादा उतना मकाम ज्यादा। ईमान ले। कहता या रसूलल्लाह, एक मसला तो हल हो गया। दूसरी बात यह है कि मेरा रंग काला है। बड़ी अजीब बात की उस अनपढ़ ने, अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब बात। या रसूलल्लाह, मेरा रंग काला है और दिन क़यामत की अल्लाह फरमाए हमने जन्नत कालों के लिए थोड़ी बनाई है। हमने जन्नत, अल्लाह ताला ये कहकर मुझे वहां से ठुकरा दें कि भाई जन्नत आपके शयान शान नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारा रंग काला है, तो क्या बनेगा दिन क़यामत के? कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, यौम तबयज़्ज़ु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। अस्वद राई से कह दो, क़यामत के दिन ईमान वाले बनकर आओगे, अल्लाह ताला 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार चेहरा नसीब फरमाएंगे। यौम तबयज़्ज़ु, चमकते चेहरों के साथ आएंगे। हदीस में भी आया ना, जो सबसे पहला गिरोह जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की मानद चमक रहे होंगे। जो उनके बाद दाखिल होंगे, आसमान के सितारों में सबसे ज्यादा चमकते हुए सितारे की तरह उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके और उनकी बीवियों के। फरमाया ये जोड़े, ईमान वाले जोड़े यूं जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। असवद राई ने कलमा पढ़ लिया। कलिमा पढ़ने के बाद इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। अर्ज की, या रसूलल्लाह, अब तो मुसलमान हो गया हूं और आपकी जंग चल रही है यहूदियों के साथ। ये बकरियां मैं आपके दुश्मन की जानिब से लेकर आया हूं, बड़ा माल है, आप इसको माले गनीमत समझ लें और इस्तेमाल करें। अब ये दुश्मन को नहीं देनी, क्योंकि वैसे भी तो दुश्मन पे आप फतह याब होने वाले हैं और ये माले गनीमत होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असवद, अभी ये माले गनीमत नहीं, ये अमानत है, तुम अमानतन लेकर आए थे, जाओ जाकर अपने मालिकों को ये बकरियां लौटा दो। जब हम फतयाब होंगे तो ये माले गनीमत होकर हमारे लिए हलाल होंगी। अभी हमारे लिए बकरियां हलाल। अल्लाह अकबर। इसका नाम है तकवा। ये हैं मामलात इस्लाम के, ये मामलात हैं। माल दुश्मन का भी है, माले मुफ्त दिले बेरहम नहीं है। उसूल हैं इस्लाम के, इस्लाम के उसूल। आज हमारी भी सोच होती है, कोई नहीं जी, वो तो वैसे ही काफिर हैं, खा जाओ तो क्या होता है, उनका माल खा जाओ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने दूसरे का माल नाजायज किया है, उसके जायज होने के कुछ जराए हैं, उन जराए को इस्तेमाल करें। असवद राई चले गए, बकरियां लौटाकर वापस आ गए, जंग छिड़ गई, दरवाजे खुल गए किले के।
اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک شخص ہماری جانب سے ہو کر لڑ رہا تھا، سر اس نے لپیٹ رکھا تھا ایک چادر میں، اس کا چہرہ ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے، مگر اتنی جوان مردی سے وہ لڑ رہا تھا اور پیدل ہی وہ لڑ رہا تھا، گھوڑے پر سوار نہیں ہے، کہ وہ دشمن کی صفوں میں گھس گیا، صفیں چیرتا ہوا ان کو کاٹتا کاٹتا نکل گیا، بالآخر خود ہی قربان ہو گیا۔ جب جنگ تھم گئی تو شہداء کو جمع کیا جا رہا تھا، زخمیوں کو جمع کیا جا رہا تھا، صحابہ کرام ایک شہید کے لاشے پر آئے اور کھڑے ہو گئے اور آپس میں تبصرہ کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ لڑ تو ہماری جانب سے رہا تھا مگر بندہ ہمارا نہیں ہے، یہ کون ہے آخر؟ بہت سوچ بچار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ علیہ السلام آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی انگلیوں کے پورے اٹھا کر کٹے ہوئے دیکھنا شروع کیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نہ بھلائے تو یہ اسود رائی ہے۔ یہ کون ہے؟ اسود رائی ہے، ایمان لائے، امانت لوٹائی اور 14ویں چاند سے بڑھ کر حسین چہرہ لے کر جنت میں حوروں کے مہمان ہو گئے، جنت میں حوروں کے مہمان۔ میرے بھائیو آئیے آج سے تہیہ کریں، انشاءاللہ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ آج سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ جی دیندار تو ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، سب کچھ ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں ہماری وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہو رہا ہے؟ کیوں ہم دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں؟ اگر دن قیامت کی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کر لیا ہم سے کہ میری وجہ سے تمہاری وجہ سے میرا دین بدنام ہوا تھا، بتاؤ یہ جرم تم نے کیوں کیا؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ ہے کوئی؟ واپس پلٹ آئیں، چلتے رہیں ایسے ہی، واپس پلٹ آئیں۔ تو حدیث میں پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت کے 4 ایسے گناہگاروں کو جہنم کی آگ میں مختلف عذاب دیے جائیں گے کہ اربعۃ یؤذون اہل النار علی ما بہم العذاب، جن کے عذاب کو دیکھ کر جہنمی ان کے واویلا چیخ و پکار سے تنگ آ چکے ہوں گے اور ان کے عذاب کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ علیہ تابوت من جمر مغلق علیہ تابوت من جمر، اس کو انگاروں کے بکس میں، صندوق میں، پیٹی میں بند کر کے، اس کا دروازہ بند کر کے، تالا ڈال کے آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی چیخ و پکار سے لوگ پریشان ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون سا گناہگار ہے؟ فرمایا جو لوگوں کے ناحق مال کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ لوگوں کے ناحق مال کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے مہمانی دن قیامت کی، جو جرم کیا اس جرم کے بقدر مہمانی ہوگی۔ دوسرا ایک شخص ہوگا جہنم میں، پیٹ اس کا پھٹا ہوا، یجر اماہ رجل یجر اماہ، کہ اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئیں، بکھری ہوئیں، اور وہ جہنم میں چل رہا ہوگا اور انتڑیاں گھسیٹ رہا ہوگا اور جہنمیوں کے قدموں تلے اس کے انتڑیاں روندی جا رہی ہوں گی اور اس کی چیخ و پکار اور واویلا سے جہنمی پریشان ہو جائیں گے، اس کے پیٹ کی بدبو سے جہنمی پریشان ہو جائیں گے، اس کے پیٹ کی بدبو۔ میرے بھائیو ہمارے ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یاد رکھیے جن گناہوں کی ہمارے ہاں حیثیت نہیں ہے، پھر بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے توبہ کی، ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا حق سمجھ کے بطور لذت کے کر رہے ہوتے ہیں اور اس گناہ سے ہمیں لطف حاصل ہوتا ہے، اور جو گناہ ہماری لذت کا سامان ہے اس سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی نہیں۔ کون اپنی لذت سے جان چھڑائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس میرے بھائیو گناہ ہے، وبال ہے، وبال دنیا وبال آخرت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا شخص وہ ہوگا جس کا پیٹ پھٹا ہوا، انتڑیاں نکلی ہوئی اور لوگوں کے قدموں تلے ان کو روندا جا رہا ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا گناہ ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ اب بتائیں ہمارے ہاں یہ بڑا گناہ ہے؟ بولو بھائی، ہے اس حیثیت اس گناہ کی ہمارے ہاں کوئی؟ نہیں۔ چھوٹے بچے کی ماں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں، بچہ اس کے گود میں پیشاب کر رہا ہے، اس کے کپڑوں میں پیشاب کر رہا ہے، بستر پہ پیشاب کر رہا ہے، اور کیا ہے جناب علی اس کے کپڑے بے نماز ہوئے ہیں، جسم اس کا ناپاک ہوا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی اپنا ہی تو بچہ ہے، بچہ تیرا اپنا ہے، لیکن پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ سزا کتنی بڑی؟ پیٹ پھٹا ہوا،
अंतड़ियां निकली हुई हैं और उसकी बदबू से जहन्नमी तंग है। गुनाह क्या किया था कि पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, जिस्म और कपड़ों को पाक नहीं रखता था, मर्द है या औरत। एक और हदीस में आया, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्न आम्मत आज़ाबिल क़ब्र मिन्हु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया पेशाब के छींटों से बचा करो, इसलिए कि उमूमन कब्र का अजाब जो होगा वो इसी गुनाह की वजह से होगा, इस गुनाह की वजह से जो पेशाब के छींटों से इज्तनाब नहीं करते, पेशाब से अपने बदन को नहीं बचाते, अपने लिबास को नहीं बचाते। ठीक है ना जी, अगर यानी कपड़े नापाक हो गए तो बस लिए फिर रहे हैं, बदन पे कहीं लग गया पेशाब तो लिए फिर रहे हैं, कोई परवाह नहीं, अच्छा धो लेंगे आराम से। सख्त गुनाह का मामला है। अगर कहीं खुदा न खास्ता गलती से ऐसा हो गया, फिर फौर धो लिया जाए, बदन को फौरन पाक किया जाए, फौरन पाक किया जाए। फ़इन्न आम्मत आज़ाबिल क़ब्र मिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कब्रिस्तान से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर बिदक गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई हज़रत जिब्रील अमीन के जरिए, वही के जरिए, कि या रसूलल्लाह ये जो दो कब्रें हैं इनको अजाब हो रहा है, ये जो दो कब्रें हैं इन दो कब्र वालों को क्या हो रहा है भाई, अजाब हो रहा है। इत्तला देने का मकसद क्या था, आप इनके लिए दुआ करें ताकि आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह इनको अजाब से नजात दें, अजाब से नजात दें। अच्छा जी, पहले मैं बता दूं कि गुनाह क्या थे। फरमाया एक का गुनाह यह था कि ये चुगलखोर था, लगाई बुझाई करना, इधर की बात उधर, उधर की इधर, ये चुगलखोरी ये भी मामूली गुनाह नहीं है, इससे भी कब्र का अजाब होता है। और कब्र का अजाब मामूली अजाब नहीं है मेरे भाई, अल्लाह ताला अपनी अमान नसीब फरमाए। अल्लाह कब्र के अजाब, अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बाग बनाए। अजाब कब्र और सवाब कब्र का मसला कुरान और सुन्नत का ये इंतहाई इत्तेफाकी मसला है, इसमें किसी भी मुसलमान को कोई एतराज और इनकार नहीं है। अजाब कब्र सवाब कब्र का मसला ये क्योंकि आखिरत की पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। और हदीस में आया मम्मात फ़क़द क़ामत क़ियामत, जिसकी मौत वाक़ई हो गई उसकी क़यामत का आगाज हो चुका है, क़यामत का आगाज हो चुका। तो अर्जी कर रहा था कि वो दो गुनाहगार क्या थे, एक तो ये था चुगलखोर था, आपस में लड़ाना, लगाई बुझाई करना, इधर से कोई बात मिली उधर पहुंचा दी, उधर से मिली इधर पहुंचा दी, ताकि यह कि मैदान गर्म रहे। होते हैं ना बाज लोग, मैदान गर्म रहे। और अल्लाह न करे, अल्लाह ताला हिदायत दे, रिश्तेदारों में ये मामलात बहुत ज्यादा हैं भाई, मेरी माएं बहनें बेटियां भी समझें इस बात को। ये लगाई बुझाई का मामला, दो बंदे इकट्ठे हुए, तीसरे पे तबसरा शुरू हो गया, कुछ कहीं से आधी पौनी बात पहुंची तो कुछ अपने से बढ़ाकर फिर वो तकरीर पूरी कर दी। इससे कितना सख्त नुकसान होता है, दो मुसलमान एक दूसरे के साथ मुस्तकिल नफरत करने लग जाते हैं। अब गुनाह किसका, ये बीच वाले का। एक कब्र वाले को इसलिए अजाब हो रहा है कि वो चुगलखोर था, और दूसरे को इसलिए अजाब हो रहा है कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आप अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताया गया। पहला वो हदीस में आता है, ये भी वाकया बनी इसराइल में, शैतान ने औरत को वरगलाना चाहा, औरत को वरगलाना चाहा कि तेरा शोहर जो है ना वो दूसरी औरतों से ताल्लुक रखता है, दूसरी औरतों की तरफ वो रागिब है, और अगर तू चाहती है कि तेरा शोहर तेरा ताबेदार हो जाए, आज भी होता ना कि बीवी चाहती है शोहर मेरा ताबेदार हो जाए, ये सोच है आज, शोहर क्या हो जाए। वो किसी दाना ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि अक्लमंद औरत कौन होती है, जो अपने शौहर को बादशाह मानती है और उसकी मलका बन के जिंदगी गुजारती है, और कम अकल औरत वो होती है जो अपने शौहर को गुलाम बना के रखती है, फिर गुलाम की बीवी बन के रहना पसंद करती है। गुलाम बना के रखूं और गुलाम की बीवी बन के रहूं। तो शैतान ने उस औरत के दिल में यह बात डाली कि तू ऐसा कर, अगर चाहती है कि तेरा शौहर तेरा गुलाम हो जाए और दूसरी औरतों के चक्कर से निकल जाए, तो फिर जब ये सो रहा हो
تو استرے سے اس کے داڑھی کے تھوڑے سے بال اتار کے لے آنا, ان پہ ہم عمل کریں گے اور تیرا شوہر تیرا تابعدار ہو جائے گا. اور یہ شیطان کون تھا؟ ابلیس نہیں تھا, یہ انسان نما شیطان تھا. کون تھا؟ انسان نما. اچھا جی, ادھر اس نے کیا کیا؟ عورت تیار ہو گئی, ٹھیک ہے میں کروں گی. ادھر اس نے اس کے شوہر سے ملاقات کی, اسے کہا تیری بیوی تجھے قتل کرنا چاہتی ہے سوتے میں. کیا چاہتی ہے بھائی؟ ہاں, اور آج رات اس طرح سے وہ تیری گردن کاٹ دے گی. اب شوہر بھی لیٹا ہوا ہے مگر وہ سوتے میں جاگ رہا ہے. ہاں جی, سوتے میں جاگ رہا ہے وہ, کہ آئے تو دیکھو کہاں نیند آئے گی. بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر سو گئے, اس نے اس طرح اٹھایا اور قریب آئی. جو ہی قریب آئی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اچھا تو واقعی مجھے قتل کرنا چاہتی تھی. اب اس کے بعد وہ صفائیاں دے صفائیاں مانے گا؟ اس نے بیوی کو قتل کر دیا. بیوی کو قتل کیا تو ادھر کیا ہوا جی, اس کے میکے والے اٹھے, انہوں نے مرد کو قتل کر دیا. اب ایک چغل خور کی چغل خوری نے کتنے لوگ قتل کرا دیے؟ 2. ایک چغل خور کی چغل خوری نے. سمجھ آ گئی؟ تو چغل خوری کی کوئی معمولی جرم نہیں ہے بھائی. اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے رشتے دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں, بسا اوقات جانی نقصان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ کس طرح ان کا عذاب ہلکا ہوگا؟ تو حکم ہوا کہ آپ یہ کھجور کی چھڑی لیں, اس کو بیچ میں سے چیر دیں, چھڑی کا ایک حصہ ایک قبر پہ رکھ دیں اور دوسرا حصہ, صحیح بخاری میں, دوسری قبر پہ رکھ دیں, اور ان کے خشک ہونے سے پہلے ان کا عذاب ختم ہو جائے گا. حتی ما لم یبسا, ان کے خشک ہونے سے پہلے ان دونوں کا عذاب ختم ہو جائے گا. اب ہم نے 10 محرم کو یہ بنا لیا معجزہ. ہم سب کا معجزہ ہے, ہم کھجور کی چھڑیاں لیں گے, جا کر قبروں پہ ہم گاڑتے جائیں گے تاکہ سب کے عذاب ختم ہو جائے. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا, یہ عمل امت کے لیے جائز نہیں ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا, اور معجزہ صرف پیغمبر تک ہوتا ہے, معجزہ کسی اور کے لیے. اچھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم سارے مل جائیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب کی برکت سے کڑوا کنواں میٹھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم تھوکتے رہیں, ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے بیچوں بیچ پانی کے چشمے جاری ہوئے, سینکڑوں صحابہ نے پانی پیا نہیں پیا؟ یہ معجزہ ہے. کیا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا, ہم پڑھا سکتے ہیں. جب معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے تو یہ بھی معجزہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا, میرے پیغمبر آپ یہ کام کریں تو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے, ان کا عذاب ختم کر دیں گے. آج اگر ہم یہ کام کرتے ہیں چھڑیاں رکھنے والا, تو گویا ہم نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی معجزہ ہے. اور یہ بھی غلطی نہیں کیا کریں. کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کوئی معجزہ ہی ہو گیا بھائی, اچانک سے یہ کام ہو, کوئی معجزہ ہی ہو گیا یہ تو ہمارا, کہہ دیتے ہیں نا, ایک دم سے یہ کام ہو, کوئی معجزہ ہی ہو گیا ہمارا. نہیں بھائی نہیں, جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, معجزات کا دروازہ بھی بند ہو گیا. اتنے ولی اللہ ہیں تو کرامت تو کہہ سکتے ہیں, لیکن معجزہ نہیں بھائی. معجزہ اللہ کے نبی کے لیے خاص ہوتا ہے. تو اب چھڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا گیا تھا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور ہم نے یقین کر لیا کہ ہمارے عزیزوں کو عذاب ہو رہا ہے نا. ہم تو پھر اس بدگمانی پر جا کر چھڑیاں رکھ کے آ گئے, ہمیں یقین ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے, اور ہر سال ہم محرم میں رکھ رہے ہیں. پھر ہیں ہر سال کریں گے بھائی. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا جاتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو چھوڑنے کا وعدہ لینا ضروری ہے. کیا کروں؟ وعدہ لے لوں؟ ہیں ہاں, لیکن وعدہ توڑنے سے پھر گناہ بھی ہوگا, اس لیے وعدہ ہی کریں, اپنے اللہ سے وعدہ کریں, یا اللہ جو غفلت ہو گئی معاف فرما دے, آئندہ آپ کی توفیق سے یہ غفلت نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو واپس آئیے بھائی. پہلا وہ شخص جس کے عذاب کی اور تکلیف کی شدت کی بنا پر جہنمی تنگ آ چکے ہیں, وہ شخص ہے جو لوگوں کے مال کھایا کرتا تھا ناحق طریقے سے, دھوکہ دہی سے,
अजाब क्या है? अलैहि ताबूतुन मुगलकुन अलैहि ताबूतुन मिन जुमरिन, जहन्नम की आग के अंगारों का बना हुआ एक बक्स है, एक पेटी है, उसमें उसको बंद करके जहन्नम की आग में डाल दिया जाए और यह अजाब होता रहेगा। और फिर दूसरा वो शख्स है यजुर्रु अमा रजुलुन यजुर्रु अमा, उसका पेट फटा हुआ है और अंतड़ियां उसकी जहन्नम की आग में वो घसीट रहा है अपनी, और जहन्नमी उनको अपने कदमों तले कुचल रहे हैं। और फिर वो क्या है, चीखो पुकार करता है, तो लोग उसके अजाब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसकी तकलीफ की बिना पर अल्लाह से पनाह मांगते हैं। इसका कसूर क्या है? नहीं भाई, नहीं भाई, चुगलखोर तो बीच में और बात आई थी, पेशाब के छींटों से न बचता था। क्या जी? पेशाब के छींटों से न बचता था। चुगलखोरी वाली तो मैंने दूसरी हदीस बयान फरमाई की ना, उसके दो कब्रों वाली, आप सामने वहां ये बात बयान फरमाई थी। इसलिए मैंने अर्ज किया कि छोटे बच्चों वाली माएं जो हैं वो बतौर खास इस चीज का एहतमाम फरमाएं कि वो अपने बच्चों के खासकर बिस्तर पे, बदन पे पेशाब करने के एतबार से जितना हिफाजत कर सकती हैं करें, जितना बचाव कर सकती हैं करें। रात को सोते हुए भी मां के कपड़ों पे पेशाब न लगे, बदन पे पेशाब न लगे, और जब उसको उठाती हैं तब भी ऐसा एहतमाम फरमाएं, कोई पैम्पर वगैरह का इस्तेमाल करें, जैसे कैसे, ताकि यह है कि हम इस गुनाह में मुब्तला ना हो। अच्छा, फिर नुकसान क्या होता है कि उमूमन छोटे बच्चों की माएं जो होती हैं वो इस उज़र की वजह से फिर नमाजें भी तर्क करने लग जाती हैं। बच्चे ने कपड़े खराब कर दिए, अब नमाज तर्क कर दी। अच्छा, एक और मसला बीच में आ गया, ये जो क़य होती है ना, उल्टी होती है, मुंह भर क़य होती है, ये भी इसी तरह नापाक है जैसे पेशाब नापाक है। उल्टी इसी तरह नापाक है जैसे छोटे बच्चे की उल्टी हो या बड़े की उल्टी हो। छोटा बच्चा अगर मां पे उल्टी कर देता है, ये जो जमा हुआ दूध निकालते हैं बच्चे, ये मैदे से होकर के आ रहा है, ये नापाक है। ये भी अगर कपड़ों पे लग जाएगा तो कपड़ा धोए बिना नमाज नहीं होगी, इसलिए इसका भी एहतमाम चाहिए। आप नाराज तो नहीं होते? देखें भाई, अब आपस की बातें हैं, कोई गैर तो बैठा नहीं हमें हैं, आपस की बातें आपस में करते रहें, और ताकि इसमें यह है कि अल्लाह करे हमें अमल की तौफीक नसीब होती रहे और एहतमाम से हम इन गुनाहों से बचने वाले हो जाए। तीसरा शख्स रजुलुन यसीलु मिन फूहिही दम्मम वक़यहा, रजुलुन यसीलु मिन फूहिही दम्मम वक़यहा। तीसरा वो शख्स होगा कि जिसके मुंह से उसकी जबान लटक रही होगी बाहर जहन्नम की आग में, और उसके मुंह से पीप और खून के फुवारे जारी होंगे, पीप और खून के फुवारे जारी होंगे, इतना कि जिधर जाएगा तो खून पीप फैलाता जाएगा, और उसकी बदबू और ताफुन की वजह से जहन्नमी तंग आकर पुकारेंगे, अल्लाह हमें इससे दूर कर दे, अल्लाह हमें जहन्नम की आग में डाला है तो ठीक इससे हमें दूर कर दे, ये तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। पूछा गया या रसूलल्लाह इससे कौन सा कसूर होता था? फरमाया, देखना भाई, गुनाह ऐसे जो हम अपना हक समझते, ऐसे गुनाह जिनको अपना हम हक समझते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो शख्स है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठे लतीफे बनाकर बयान किया करता था, लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए झूठे जोक लतीफे बयान करता था, ताकि लोग कहें वाह वाह वाह, बड़ा जी जिंदा दिल शख्स है। हाँ जी, मजलिस को चार चांद लगा देता है, हंसाने वाला शख्स है। अल अमान वल हफीज। मेरे भाइयों, आज तो ये अजाब खुदा का मस्जिदों के मिंबरों से भी हो रहा है, ये अल्लाह का अजाब है। मैं समझता हूं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इस गुनाह पर इतना बड़ा अजाब है कि जहन्नमी तंग आ जाएंगे। मिंबर रसूल होता है और वहां से भी कई उलमा बयान कर रहे हैं, और अवाम की तो खैर बात ही नहीं ना, अवाम की तो बात ही ना कर। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमा। भाइयों, मिंबर रसूल, मसाजिद, खानकाहें, मराकिज, दीन की मजलिसें, ये लतीफे सुनाने के लिए नहीं है। और अगर कभी किसी को यानी मजाक करना है तो जायज मजाक हंसाने के लिए, मगर जायज और सच्चा मजाक करना भी जायज है। ये भी नहीं है कि हर वक्त बिल्कुल आप जो है ना जी पत्थर की तरह सख्त रहें, ये भी नहीं है। तबीयत में नरमी, मुस्कुराहट जायज, और किसी के साथ दिल लगी करना जायज है, मगर दिल लगी कैसी हो, उसमें झूठ ना हो। मसलन एक बुढ़िया आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मुझे भी जन्नत में जगह दे दें दिन क़यामत के। आपने फरमाया माँ जी, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी जी, बूढ़ी औरतें जन्नत में।
अच्छा, अब तो बेचारी वो रोने धोने लगी, या रसूल अल्लाह मैं तो फिर मर गई, मैं तो बर्बाद हो गई, जब बुढ़िया औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। जब उसकी परेशानी की कैफियत देखी, आपने फरमाया अल्लाह आपको जवां करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। हाँ, कैसे? अब इस मजाक में झूठ था? नहीं था, झूठ नहीं था इसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तो एक ताल्लुक ही बड़ा अजीब है ना, गुलदस्ता है ये फूल एक ही गुलदस्ते में हमेशा सजते दिखाई देते हैं हमें। खजूरें खा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे साहबे किराम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खजूरें गुठलियां रखते जा रहे हैं, गुठलियां जमा करते जा रहे हैं। दस्तरखान पे जैसे वहीं ढेरी लग रही थी, सब वहीं रखते गए। जब घा के फारिग हुए, आपने फरमाया अली, अगर ऊपर से अचानक कोई बंदा आ जाए और वो देख के क्या कहेगा कि हजरत अली ने अकेले में इतनी खजूरें खाई हैं, आपके सामने घुटलियों की ढेरी लगी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह, उन्होंने भी बरजुस्ता जवाब दिया, या रसूलल्लाह, आने वाला इतना जरूर सोचेगा ये अली ने खा के घुटलियां निकाली हैं, बाकी घुटलियों समेत खा गए हैं। घुटलियों, ये क्या था? ये दिल लगी है, समझ आ गई, जिसमें कोई तसन्नो नहीं है, समझ आ गई। इस तरह कभी दोस्तों के साथ दिल लगी कर लेना जायज है, जायज है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन झूठे मजाक करना जायज नहीं है भाई। मिसाल के तौर पर, हां, बड़ा अजीब मसला, छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, और छोटे बच्चे का दिल बहलाने के लिए, तेरे को मैं टॉफी दूंगा, तेरे को मैं चीजी लेकर दूंगा, मकसद के बच्चा आए जरा प्यार करूं, छोड़ दूंगा। ये धोखा है, मुस्तकिल झूठ का गुनाह है। आप अलैहिस्सलाम अपने अजीजों के यहां तशरीफ ले गए, छोटा बच्चा था अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु, वो खेल रहे हैं, 1.5-2 साल की उम्र के बच्चे हैं। मां ने यूं मुट्ठी बंद करी और कहती हैं अब्दुल्ला बेटा आओ मैं तुम्हें खजूर दूं, हदीस में, आओ बेटा अब्दुल्ला मैं आपको खजूर, ताल आती का तमरन, आए मैं आपको एक खजूर दूं। बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है। आपने फरमाया अब्दुल्ला की मां मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोली, खजूर थी। आपने फरमाया हाँ, अच्छा हुआ कि आपके हाथ में खजूर है, अगर ये खजूर ना होती और महज आपने बच्चे को बहलाने के लिए ये इशारा किया होता या वादा किया होता तो आपका मुस्तकिल एक झूठ लिख दिया जाता। क्या होता जी? मुस्तकिल एक झूठ लिख दिया जाता। तो यहां हमारा क्या हाल है, हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? दिन क़यामत के सबसे ज्यादा अजाब जिस शख्स को होगा, यह भी हदीस में है, सबसे ज्यादा जिसको अजाब दिया जाएगा वो 2 शख्स होंगे। नंबर 1 तस्वीर बनाने वाला, नंबर 2 झूठे लतीफे सुनाने वाला। तस्वीर बनाने वाला और झूठे लतीफे सुनाने वाला, इनको सबसे ज्यादा अजाब दिया जाएगा दिन क़यामत की, झूठे लताइफ। हां, एक हदीस में आया, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, एक ऐसा शख्स है कि 2 लोग आपस में लड़े हुए हैं, या मियां बीवी आपस में लड़े हुए हैं, अब इनको आपस में जोड़ना चाहता है, इनकी सुलह कराना चाहता है। फरमाया यहां बीच में अगर कहीं झूठ का सहारा लेगा तो लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी, इसका झूठ नहीं लिखा जाएगा। क्यों? मकसद क्या है? 2 लोगों को आपस में मिलाना है, जोड़ना है। कैसे? एक के पास जाए, उसे कहे भाई वो तो आप की मोहब्बत में बेचारा परेशान बैठा हुआ है, वो कहता है यार कोई बीच में आ जाए, वो मेरा भाई है, गलतियां सारी मेरी हैं, बस हो गया, कोई जाके मेरे भाई को मुझे मना दे। समझ आ गई है भाई? वो तो तेरे फिराक में बेचारा रो रहा है, तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर रहा, भले उसको पता ही नहीं है, भले उसको पता ही नहीं है। दूसरे के पास वापस गया, भाई वो तो कह रहा है यार कोई बीच में आ जाता, वो मेरा भाई है, गलती सारी मेरी है, उस बेचारे को कोई कसूर नहीं है, गलत फहमियां हो गई तो मैं माफी चाहता हूं, कोई हमें आपस में अल्लाह के लिए मिला दे। आकर इसको भी फिर कहा, कहता अच्छा ये हुआ, वो कहता अच्छा इतना नरमी आ गई है। इनको लाते 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 अचानक आके मिला देगा, बाद में ताकीद करते रहे किसने पहल की थी, हैं? दुश्मनी खत्म करा दी, बाद में होती रहे तहकीक। फरमाया इस झूठ बोलने पर अल्लाह ताला गुनाह नहीं लिखते हैं। ऐसे ही मियां बीवी के दरमियान अगर तनाजा है तो इस रंजिश को मोहब्बत में बदलने के लिए अगर कहीं पर कोई इस तरह का जुमला इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर शोहर को अगर कहते हैं वो बेचारी तो रो रही है, कहती है इसके बिना मेरा है कौन, इसके बिना मेरा, कोई तो बीच में आ जाए, मैं गलती पर हूं, मैं मुआफी चाहती हूं। समझ आ गई है? अच्छा, ऐसे ही मर्द की तरफ से जाकर औरत से कहें, वो कहता नहीं वो तो मेरी बहुत खिदमत करती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन नहीं ये मेरी तरफ से ज्यादती है, वाकई वो उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है।
हाँ गलत फहमी है। तो क्या हुआ, औरत का जो पारा था वो भी डाउन हुआ, मर्द का पारा भी डाउन हो गया और आकर मिल गए। बाद में मिले, घर में आ जाए औरत और बाद में ये कहते रहे तूने पहल की या तूने पहल की, बहरहाल हो तो गई ना। हाँ भाई, हो तो गई। लिहाजा रिश्ते जोड़ने के लिए अगर इस तरह कोई जुमला इस्तेमाल हो जाए तो उस पर गुनाह नहीं होता है। अल्लाहु अकबर। कितने हो गए जी? 3। नंबर 1, वो शख्स जिसको अंगारों के संदूक में बंद करके सजा दी जाएगी, ये वो है जो लोगों का नाहक माल खाता है। ये सबक है भाई, याद कर लें इसको। नंबर 2, वो शख्स जिसका पेट फटा होगा और अंतड़ियां घसीट रहा होगा जहन्नम की आग में, जहन्नमी उसकी तकलीफ से परेशान होंगे उसके चिल्लाने से। इसका कसूर क्या है? हाँ, बदन नापाक रखता था, कपड़े नापाक होते थे। घर में अक्सर खवातीन क्या करती हैं, घर में पोछा लगाती हैं, फर्श धोती हैं, गंदी जगह होती है नापाक, तो अपने कपड़ों का कोई लिहाज नहीं करती। अच्छा, यहां मसला समझें, इस सोच पर कि चलें छींटे आने में कोई नहीं, मैंने तो वैसे ही नहाना है, ये मुस्तकिल गुनाह है। इस सोच पर कि छींटे आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, नहाना है, कपड़े बदलने हैं, ये बचाएं अपने आप को इस चीज से। हद तल वसा बचाएं, जितना मुमकिन हद तक हो सके बचाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पेट फटा होगा, दिन क़यामत की अंतड़ियां पेट से निकली होंगी और हालत बड़ी जार होगी। और तीसरा, वो शख्स है जिसके मुंह से खून और पीप के फवारे जारी होंगे, जबान उसकी लटक रही होगी, ऊपर का जबड़ा ऊपर, नीचे का नीचे है, और मुस्तकिल उसके मुंह से फवारे जारी हैं और बदबू ही बदबू है। इसका कसूर क्या था? लोगों को हंसाने के लिए झूठे लतीफे बयान करता था, झूठ बना बना के लोगों को हंसाता। हम ये कॉमेडियन है, ये तो, हाँ ये तो स्टार है, ये तो कॉमेडियन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितने अल्लाह के बड़े दुश्मन उतने हमारे वो फेवरेट लोग हैं। और चौथा वो शख्स है, फरमाया रजुल याकुलु लहमहु, एक शख्स होगा जो अपने बदन से गोश्त के टुकड़े काट काट के खा रहा होगा। अपने बदन से, छुरी उसके हाथ में है और काट काट के खा रहा है, काट अपने बदन के टुकड़े, कभी कहां से कभी कहां से। शदीद तकलीफ है, चिल्लाता भी है दर्द की वजह से, लेकिन उसका हाथ नहीं रुक रहा, उसका हाथ गैबी ताकत चला रही है, अपने बदन के टुकड़े काट काट के खा रहा है। पूछा गया या रसूल अल्लाह, इससे क्या गुनाह हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोगों की गीबत करने वाला है। क्या करने वाला है भाई? ये गीबत करता है। साहबा ने पूछा, तवज्जो है भाई, मेरी माएं बहनें बेटियां भी तवज्जो करें। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, एक शख्स के अंदर एक ऐब मौजूद है, एक कसूर मौजूद है, और अगर उसकी पीठ के पीछे हम उसका कसूर बयान करते हैं कि फलां में ये ऐब है, तो क्या ये भी गीबत बनेगी? आपने फरमाया यही तो गीबत है, अगर उसमें ऐब नहीं और बयान करेंगे ये बहतान होगा। क्या होगा? बहतान गीबत से भी बड़ा गुनाह है। गीबत क्या है? किसी में ऐब है और उसके पीठ पीछे आप उस पर तबसरा कर रहे हैं, तो इसका नुकसान क्या है? एक तो इस सजा के मुस्तहिक हो रहे हैं, दूसरा आपकी नेकियां इसी वक्त आपके नाम आमाल से उसके नाम आमाल में मुंतकिल होना शुरू हो चुकी। जब तक कि वजन पूरा नहीं होगा, बदला पूरा नहीं होगा इस गीबत और गिला करने का, तब तक ये नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा, वहां मुंतकिली, ये बैलेंस वहां जाता रहेगा। नुकसान का मामला है कि नहीं? दिन क़यामत के अपने बदन का गोश्त काट काट, कुरान मजीद में कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमु, फरमाया कि गीबत करने वाला ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। कुरान में इस तरह के अल्फाज भी हैं, मुर्दा भाई का गोश्त खाना। यहां है अपना गोश्त भी काट के खाएगा, गोया मुर्दे भाई का भी गोश्त खाएगा और अपना भी गोश्त खाएगा। दोनों सजाएं कुरान और हदीस से साबित। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत, अच्छा गीबत क्या है ये भी समझ लें। गीबत, हम कहते हैं जी हम तो भाई सच बोलेंगे, हाँ हम तो हक बोलेंगे, सच बोलेंगे, भले किसी की इज्जत उछाल नहीं, हम तो सच बोलेंगे। इसमें क्या मामला है? तो अर्ज ये कर रहे थे कि गीबत एक बहुत बड़ा जुर्म है। हम कहते हैं जी हम तो सच बोल रहे हैं, किसी के पीठ पीछे कोई बात करे, इसमें झूठ क्या है? उलमा ने गीबत की तारीफ ये लिखी है कि किसी का वो ऐब जो उसके सामने बयान करें तो उसको बुरा लगे, किसी के मुताल्लिक कोई बात जो उसके सामने बयान करें तो उसको बुरी लगे, वही बात उसके पीठ पीछे बयान करेंगे तो गीबत होगी।
وہی بات اس کی پیٹھ پیچھے بیان کریں گے تو کیا ہوگی؟ اور اگر ہے اصلاح مقصود تو اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اس کو اکیلے بٹھا دیں، خیرخواہی کے جذبے سے، نرم الفاظ سے، اچھے انداز سے، پیار محبت سے انہیں کہیں دیکھیں ہم بھائی آپس میں آپ کی خیرخواہی چاہ رہا ہوں، اس طرح معاملہ ہے، آپ اس معاملے میں اپنی اصلاح کر لیں۔ کیوں؟ جب یہ بات لوگوں میں آئے گی تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہوگی، آخرت کا نقصان الگ سے ہوگا۔ یہ خیرخواہی کا جذبہ ہے، اکیلے بیٹھ کر کسی کو سمجھانا اصلاح کا انداز ہے، اور لوگوں کے سامنے سمجھانا یہ تذلیل ہے، اس کو گناہ پر مضبوط کرنا ہے، یہ تذلیل ہے، یہ رسوائی ہے اس کی۔ اچھا، بسا اوقات زبان سے غیبت ہوتی ہے، اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے، اشاروں سے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تھیں، تو آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ قد کے اعتبار سے چھوٹی تھی، قد کم تھا ان کا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں آپ علیہ السلام کے پاس، کوئی بات کہی، کوئی مشورہ تھا، جب واپس پلٹنے لگیں، پیٹ کر کے جانے لگیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، یا رسول اللہ، ٹھیک نا قد کی ہیں، ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، قد چھوٹا ہے ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا عائشہ تھوکو یہاں۔ جب تھوکا تو تھوک بالکل کالی سیاہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کی مخلوق اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے مر جائے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ کو غیبت کا اثر، یہ غیبت ہے، آپ نے غیبت کی ہے اس کی۔ اب غیبت کا تدارک کیا ہے؟ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگیں۔ اللہ کے ہاں کیسے معاف ہوگی؟ جس کی غیبت کی ہے اس سے۔ اچھا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کے بارے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، اس سے تو اختلاف بڑھے گا، سمجھا کہ بڑھے گا۔ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں نے غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کے متعلق بہت کچھ کہہ دیا، آپ مجھے سب کچھ اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کیا کر دیں؟ سب کچھ اللہ کے لیے۔ اب سب کچھ ہو گیا تو اس میں ساری باتیں آ گئیں، ورنہ بہتان جو ہے اس پر تو قرآن مجید نے واضح سزا مقرر کر دی ہے۔ کوئی کسی پر اگر بہتان لگا دے، یعنی جو اس میں عیب نہیں ہے، اور پھر اس کے متعلق اگر آپ اس کو عیب بنا کر بیان کرتے ہیں، اس کی تو شریعت میں 80 کوڑے سزا ہے۔ کیا ہے؟ اور یہاں تک بات نہیں کی لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، سورہ نور میں فرمایا کہ پھر اس کو کوڑے بھی لگاؤ، اور یہ توبہ طائب ہو بھی جائے تو ساری زندگی کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ نکاح ہونے لگے، یہ کہے جی میں بھی سفید ریش ہوں، میں بھی علاقے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، مجھے گواہ بناؤ، تو کہیں شریعت نے آپ کی گواہی قبول کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ کی گواہی شریعت نے قبول کرنے سے کیا کیا ہے؟ لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس معاملے میں بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ خواتین میں اس چیز کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ جہنم میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، اجازت ہو تو ترتیب سے کبھی بیان کروں۔ جہنم میں لے جانے والے ہلاکت خیز گناہ کون کون سے ہیں؟ اور جہنم میں لے جانا نہیں ہے صرف، جہنم میں الگ الگ سزائیں ہیں، الگ الگ طبقات ہیں، پارٹیشن ہیں، الگ الگ طبقات ہیں۔ نماز چھوڑنا الگ گناہ، اس کی الگ جہنم ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا الگ لیول کا گناہ، الگ جہنم ہے۔ جھوٹ بولنا الگ گناہ، الگ لیول کی جہنم ہے۔ کھائیاں ہیں وہاں، کنویں بنے ہوئے آگ کے، اور ان میں الگ الگ نوعیت کی سزائیں ہیں۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی، اللہ، انسان آپ حقیقتیں پڑھیں دل پھٹتا ہے پڑھ کے۔ یعنی اس لیے دل پھٹتا ہے کہ بھئی ہمارا تو حال یہ ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کس گناہ میں ملوث ہیں، اس سے پورے نکلے نہیں، اس میں ملوث ہو گئے، اس سے نکلے نہیں، اگلے میں ملوث ہو گئے۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہماری زکوٰۃ کا کیا حال ہے، ہماری آنکھوں کے حیا کا کیا حال ہے، ہمارے معاملات کا کیا حال۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، بٹھائیں ان کو نیچے، مہمان ہیں جو اوپر بھیج دیں۔ جی جی، سمجھ شریف میں آ گئی یہ بات جی؟ تو اب ہماری تشکیل کیا ہے؟ حدیث شریف سامنے آ گئی، اور یہ عام روایت نہیں ہے، یہ تو دل دہلا دینے والی باتیں ہیں۔ اب ہماری تشکیل کیا ہے؟ آج ہی ہم اللہ تعالی سے توفیق مانگتے ہوئے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لا حول ولا قوت
इल्ला बिल्ला, होगा वही जो अल्लाह तौफीक देंगे। हमने अल्लाह की तौफीक से आज ही इरादा करना है कि जिन जिन के साथ हमारे लेन देन के मामलात हैं, इंशाअल्लाह आज से ही हम उन मामलात का हल सोचना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। समझ आ, उनका हल निकालना है इंशाअल्लाह। समझ आ गई है? अगर हमने किसी के साथ धोखा ज्यादती की है, लौटाएंगे इंशाअल्लाह। किसी का हक देना है, पूरा इरादा कर लें, तगोदौ में लग जाए, मेहनत में लग जाए, जितना जल्दी हो सके हमारे घर में चूल्हा जले न जले, कर्ज पहले अदा हो जाए। भाई इरादा करते हैं सारे साथी, जितने हुकूक हमारे जिम्मे वो अदा हो जाए इंशाअल्लाह। नंबर 2, ये करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला बड़ी सजा से बचा लेंगे। अल्लाह बड़ी जहन्नम की सजा से अल्लाह बचा लेंगे, और पेशाब के छींटों से इंशाअल्लाह बचेंगे। ये बड़ा गुनाह है भाई, सगीरा गुनाह नहीं है। ये क्या है? ये कबीरा गुनाह। हम बचेंगे इंशाअल्लाह। अपने घर को साफ रखें, अपने बिस्तर साफ रखें, अपना कपड़ा साफ रखें, अपनी जाए नमाज को पाक रखें, अपने घर का फर्श पाक रखें। मेरी माएं बहनें बेटियां इस मामले में इंतहाई तवज्जो दें इस मामले पर। ऐसा नहीं होता कि घर में बसाओगत कहीं पे बच्चे ने पेशाब कर दिया, अब वजू बना के पांव गीले हैं वहां पांव रख दिए, पता भी नहीं है, तो गीला पांव वहां पड़ा और नीचे जगह नापाक थी, पांव नापाक हो गया, नमाज होगी? घर की खवातीन को पता है कि हमारे बच्चे ने ये किया है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप नमाज इसी तरह नापाक पांव से मस्जिद में चले जाएंगे, जहां जहां कदम गीला रखते चले जाएंगे, मस्जिद नापाक, कितने लोगों की आगे नमाज का नुकसान होगा। इंशाअल्लाह इस गुनाह से हम बचेंगे। सुबहान अल्लाह। इसलिए नहीं कहते कि सफाई निस्फ़े ईमान है, वाकई निस्फ़े ईमान है, वाकई निस्फ़े ईमान। और तीसरी चीज क्या है कि हम इंशाअल्लाह ताला पहले तोलेंगे फिर बोलेंगे। समझ आ गई? ऐसा नहीं है कि ठीक है जी यहां बात फिट आ रही है तो फेंक दो, ऐसा नहीं होगा कि जहां फिट आ रही हो नहीं फेंकेंगे, नहीं भाई, पहले तोलेंगे फिर इंशाअल्लाह बोलेंगे। और नंबर 4, हमने क्या करना है इंशाअल्लाह ताला, हम गीबत नहीं करेंगे, हैं जी, सास बहू नहीं बनेंगे। बोले ना, मेरी बहनें सुन रही हैं, मैं इसलिए गुजारा करता हूं इस मामले में कि भाई जरा तवज्जो। समझ आ गई? घर में किस घर में मामलात नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन तहैया कर लें कि इंशाअल्लाह ताला हमने किसी, यानी सास की जिम्मेदारी है बहू की गीबत ना करे, बहू की जिम्मेदारी है सास की गीबत ना करे। समझ आ गई है? घर में एक दूसरे की देवरानियां हैं, गीबत ना करें। समझ आ गई? घर की खवातीन, घर के मर्द, अजीज व अकारिब में इस चीज को अपनी जिंदगी से निकालें, इस गुनाह को धक्के मार के निकालें अपनी जिंदगी से। क्यों? ये ऐसा बेलज्जत गुनाह है, ऐसा मुफ्त का गुनाह है कि जिसकी वजह से हमारी नेकियां उनकी जानिब जाती हैं, उनके गुनाह हमारी जानिब आते हैं। बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दें जी पर्चियां। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ लोग गले, पांव और हाथ में डोरी जिसमें गिरा लगी होती है, कहते हैं ये दम की हुई बांधते हैं, इसका क्या शरई हुक्म है? देखें जी, शरई हुक्म पूछा है आपने तो मैं अर्ज कर देता हूं। बाज लोगों के होते हैं तजर्बे, वो कहते हैं जी ये हमारा तजर्बा है, यूं इतनी इसमें गिठान लगा दें और ये कर दें वो कर दें तो ये हो जाएगा। तजर्बे रखें एक तरफ, मामला है शरीयत का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु घर आए, देखा कि उनके अहलिया के गले में एक डोरी पड़ी थी जिसमें जगह जगह गिरा लगी हुई थी, और पूछा कि ये क्या है? कि जी वो एक यहूदिया औरत है, वो मंतर पढ़ती हैं, उन्होंने मुझे ये पढ़ कर दी है, मैंने ये पढ़ी हुई डोरी गले में डाली है। हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं और उम्मत के बड़े फिक्की आलिम सहाबी थे। अपनी बीवी के गले की डोरी में हाथ डाल के तोड़ कर फेंक दिया। फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद के घर में शिर्क का क्या काम है? अब्दुल्ला बिन मसूद के घर में शिर्क का क्या काम है? शिर्क यहां क्या लेने आया है? तो मालूम यह हो गया कि यह अमल शरन जायज नहीं है। इससे ना तो कोई नजर बद का इलाज होता है, ना ही किसी और मर्ज का इलाज होता है। कुरान पढ़ें, दम करें, इंशाअल्लाह ताला लाफियत वाला मामला फरमाएंगे। एक किसी की गीबत करता है, दूसरा वो सुनता है, तो क्या वो गीबत करने वाला गुनाह में? जी बिल्कुल, करने वाला सुनने वाला बराबर के गुनाहगार है। करने वाला सुनने वाला, क्यों? जितना करने वाला लज्जत उठा रहा है, सुनने वाला भी लज्जत उठा। समझ आ गई है? तो ये क्या है, अगर एक सुनने से मना कर दे दूसरा बोलेगा, तो अगर कहीं गीबत हो रही है तो उसे कहें भाई आपके अमाल फालतू होंगे, हमारे नहीं है, ठीक है, आप मेहरबानी करें, गीबत नहीं करें, कोई काम की बात करें, कोई खैर की बात करें। समझ आ गई? तो इसमें उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला उसे भी हिदायत अता फरमाए। एक शख्स है वो उलमाए किराम को, जो कि उलमाए हक हैं, उनको कहता है कि ये उलमाए
کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اچھا علماء کرائم ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ علماء کرام نہیں، علماء کرائم ہیں، واہ بھائی واہ، استغفر اللہ، ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ساتھ، اوئے ہوئے ہوئے۔ سب سے پہلی فرصت میں یہ کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کریں اور پھر یہ تجدید نکاح کریں، ان کی بیوی بھی نکاح سے فارغ ہے، ٹھیک ہے جی، ناراض نہیں ہونا، فتویٰ اس سے بھی آگے کا ہے کتابوں میں پھر بھی رعایت رکھ رہا ہوں، فتویٰ تو یہ کہتا ہے کہ یہ مرتد ہے، توبہ نہیں کرے گا واجب القتل ہے، فتویٰ تو یہ کہتا ہے، لیکن کم از کم کیا کرے بھائی، سچی توبہ کرے، اللہ سے سلو کرے، کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث، نبیوں کے وارث ہیں۔ وراثت کیا ہے؟ دین اور شریعت ہے، پیسہ مال دولت جائیدادیں وراثت نہیں ہے، یہاں نبیوں کی وراثت قرآن و سنت، آپ علیہ السلام کی وراثت قرآن و سنت ہے، جو علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن و سنت والی وراثت کے وارث بنے اور ان کو اس وراثت کی وجہ سے پھر ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو علماء کرائم کہا جاتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ اس کرائم کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، ہاں جی، اس جرم کی نسبت ادھر کی جا رہی ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تجربہ ہے کہ جو لوگ علماء کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، ہاں ان کا خاتمہ برا ہوتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے۔